Welcome to Language Logic, dear learner. I'm Rahul Lajani, and today we're going to see these topics, part 3 question answer. The topic is describe something that you did with someone or a group of people, right? इसके question answer हम देखेंगे with the use of collocations, phrases and idioms so that you can use those things in your real test. Alright? और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने इस story नहीं देखी है, then don't worry, I have given the link at the end of this video. Alright, then you can check this out. So let's dive in. Alright, so first question है, how do you get along with your neighbors? When moving into a new neighborhood or when new neighbors move in, I make an effort to introduce myself as a friendly greeting, and a brief conversation can set a positive tone from the start. If there are any concerns or issues, I address them calmly and directly with my neighbors. This can prevent misunderstandings from escalating and foster a sense of community. I try to be helpful and supportive when possible. Neighborhood यानी कि हम जो एरिया में रहते हैं वो, moving into यानी कि shift होना, then है brief conversation यानी कि जो conversation वो कैसा है, छोटा, then है make an effort. हम बोलते हैं ना I give an effort, उसकी जगह पर आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, make, to make it a collocation. फिर है positive tone, आपको पता ही होगा शायद. address यानी कि कोई भी जो सिचुएशन उनको हल करना, चैलेंजेस है उनको सॉल्व करना, राइट. फिर है escalating. escalating यानी कि कोई भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर चली जा रही हो, then you can use this word. फिर है foster यानी कि develop or you can say encourage करना, right? Okay, so we're moving to our next question, and that question is, how do neighbors help each other? Neighbors often share tools, household items, or lending kitchen supplies for a special recipe. During emergencies or unexpected situations, they can provide crucial support. This could involve offering temporary shelter, calling for help, or providing first aid. Along with it, keeping an eye on each other's homes when neighbors are on vacation or away for an extended period helps deter potential burglaries and ensure peace of mind. Okay, crucial support यानी कि important support. फिर this could involve in, अगर हम एग्जाम्पल देना चाहे तो हम कैसे यूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो आप उनकी जगह पर ये फ्रेज यूज कर सकते हो, दिस कुड इन्वॉल्व. फिर जो भी आपका एग्जाम्पल है वो आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो फॉर इंस्टेंस की जगह पर. फिर है अलोंग विथ यानी कि इसके साथ साथ, हम बोलते हैं ना एंड विथ, मोर ओवर, फर्दर मोर, इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हो. फिर है कीपिंग एन आई यानी कि नजर रखना. फिर एक्सटेंडेड पीरियड यानी कि कुछ टाइम तक, गॉट इट. और हाँ, एक वर्ड है डिटर. ये एक्चुअली तब यूज होता है कि जब क्रिमिनल वाला ऐसे अगर हमको पूछा जाए, देन यू कैन यूज इट. डिटर का मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन है ना उसको कम कर देना, यानी कि डिस्करेज करना, गॉट इट. ओके, सो we're moving to our next question, and that is, do you think neighbors help each other more often in the countryside than in the city? The reality can vary based on several factors. In rural areas with smaller, close-knit communities, neighbors often have stronger social ties and may be more inclined to help each other due to a sense of shared identity and proximity. On the other hand, urban neighborhoods can vary widely in terms of community cohesion. In densely populated cities, people may not know their neighbors as well due to the transient nature of city living and diverse demographics. Okay, vary यानी कि change होना, रियलिटी बहुत ही कुछ अलग हो सकती है, राइट. वेरी कम, उसका मतलब ये है. फिर है क्लोज निट कम्युनिटीज, ये एक्चुअली हम इसके ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लोज निट फैमिली
यानी कि जो फैमिली मेंबर है वो बहुत ही करीब है एक दूसरे के, राइट? देन वी कैन यूज इट क्लोज नीट। अगर कम्युनिटीज है, सोसाइटीज है, हम यूज कर सकते हैं। फिर है सोशल टाइज, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारी सोसाइटीज में जितने भी सारे लोग हैं, अगर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देन यू कैन से सोशल टाइज, राइट? फिर है शेयर्ड आइडेंटिटी, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी वो कैसी है, सेम है, हम सेम ही बैकग्राउंड शेयर करते हैं, जैसे कि हिंदू है या फिर मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है, अगर सब सेम आइडेंटिटी शेयर करते हैं, यू कैन से शेयर आइडेंटिटी। फिर है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा एहसास होना, फील होना कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? देन वी कैन यूज दिस वर्ड प्रॉक्सिमिटी। फिर है कोहेजन, कोहेजन हमारे राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में यूज होता है। कोहेजन का मतलब क्या है, सुसंगतता, हम बोलते हैं ना हारमोनियस, यस दैट इज द वर्ड फॉर दैट। फिर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि पॉपुलेशन तो है पर कैसी है, बहुत ही गीच है। फिर ट्रांजिएंट नेचर, ट्रांजिएंट नेचर यानी कि शॉर्ट टाइम नेचर, इसका अगर एग्जांपल दूं तो थोड़े थोड़े टाइम में नेचर जो है वो चेंज हो जाता है, राइट? तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिएंट, हम बोलते हैं ना टेम्पररी, दिस इज द वर्ड फॉर दैट। फिर डाइवर्स डेमोग्राफिक्स, या फिर जो जगह है वो कैसी है, बहुत ही अलग अलग है, राइट? ओके, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न टू कोऑपरेट विथ ईच अदर? Through a gradual process of social development and interaction, engaging in unstructured play activities such as playing games, building blocks, imaginative play scenarios with peers, allows children to negotiate roles, share toys, and take turns. Working on a group projects or tasks in a school or community settings requires children to cooperate, allocate responsibilities, and contribute towards a shared goal. ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस है वो थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर दी है, राइट? उसको ये बोला जाता है ग्रेजुअल प्रोसेस। फिर है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज, कि जिसका कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं है, हाँ बस वैसा। फिर है नेगोशिएट रोल्स, कि कौन सा व्यक्ति कौन सा रोल डिसाइड करेगा, मतलब प्ले करेगा, नेगोशिएट का मतलब ये है। फिर टेक टर्न्स, यानी कि बारी बारी से काम लेना, स्पिनर्स या फिर बॉलर्स क्रिकेट में करते हैं ना कि 2 ओवर डाली, फिर बाद में दूसरा डालेगा, फिर बाद में 1 ओवर डालेगा, तो टेक टर्न्स उसको बोलते हैं। फिर अलोकेट, यानी कि शेयर करना, कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलनी चाहिए, राइट? दैट विल बी कॉल्ड अलोकेट, गॉट इट? ओके, सो वी आर मूविंग टू 5th question, and that question is, do you think parents should teach children how to cooperate with others? Yes, parents can guide children in understanding different perspectives, negotiating solutions, and compromising when necessary. By nurturing cooperation skills from an early age, parents empower children to build positive relationships, develop essential social competencies, and thrive in various aspects of their life. Negotiate, अगले वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि सॉल्यूशन का नेगोशिएशन क्या होगा, कौन सॉल्व करेगा। फिर है नर्चर, यानी कि उसको डिवेलप करना। फिर है एम्पावर, यानी कि स्ट्रेंथ देना, एम्पावर। फिर है पॉजिटिव रिलेशनशिप, पता है। सोशल कॉम्पिटेंसीज, यानी कि हमारी जो सामाजिक स्किल्स है, सोशल स्किल्स हम बोलते हैं ना, यस दैट इज कॉल्ड सोशल कॉम्पिटेंसीज। फिर है थ्राइव यानी कि डिवेलप होना, गॉट इट? ओके, so we're moving to our next question, 6th, and this will be, do you think it's important for children to learn about cooperation? Cooperation fosters positive relationships with peers, siblings, and adults. Children who know how to cooperate are more likely to make friends, maintain friendships, and contribute positively to the social groups. It encourages them to consider others' perspective, understand the different viewpoints, and emphasize with their peers. This promotes empathy, kindness, and mutual respect in their interactions with others. ओके, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, यानी कि जो भी योगदान देना है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कोलोकेशन है।
फिर लाइकली, मोर लाइकली, यानी कि जो चांसेस है वो कैसे है, बहुत ही हाई है। अगर आपने ये यूज़ कर दिया ना मोर लाइकली, तो आपका जो आंसर है ना वो कैसा होगा, प्रिसाइज होगा, ओवर जनरलाइज नहीं होगा। अक्सर हम अपना जो ऐसे है वो ओवर जनरलाइज कर देते हैं सभी चीज़ें मेंशन करके, पर ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 6+ बैंड चाहिए तो देन यू कैन यूज़ दिस। फिर है पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारी जो थॉट्स है, आइडियाज़ है, हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको ये बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव। फिर है एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति आप बोल सकते हो इसे। फिर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो है पर कैसी है, म्यूचुअल, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग वाली रिस्पेक्ट है। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ, तो था ही। अब सेवंथ शायद है या नहीं है, नहीं है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ भाई ये वर्ड यूज़ करना चाहिए हमारे स्पीकिंग या फिर राइटिंग में, then feel free to use it in your writing and speaking as well to get 6, 7, 8 or 9 band, right? और हाँ, एक चीज़ आपको और कर दी है कि नीचे जो लाइन है ना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन सब में हिट कर देना है, ताकि अगला वीडियो स्पीकिंग पार्ट 2 की अगली स्टोरी जो होने वाली है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑलराइट, सो सी यू अगेन